Hi guys, very good evening. So guys, sorry for the delay. First of all, आज का हमारा लाइव सेशन का टॉपिक है बेसिकली ट्रांसजेंडर बिल। ट्रांसजेंडर बिल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2017 में कि गवर्नमेंट और द स्टेट शुड rise above the reservation and rise reservation of the OBCs and other communities and should think of new areas. New areas in जैसे ट्रांसजेंडर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को भी क्यों इतना टाइम लगा ये रिकॉग्नाइज करने में कि रिजर्वेशन जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, राइट। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है सीधे सीधे कि अगर प्रोहिबिशन आर्टिकल 15 की बात करें, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। तो आर्टिकल 15 में सीधे सीधे ये दे रखा है कि discrimination on the grounds of sex should not be tolerated. Despite that, it took Supreme Court 70 odd years to recognize that this kind of discrimination is going on, right? In 2014, Delhi High Court gave the judgment that gay rights or LGBT rights should be recognized. Transgenders, their rights should be recognized and they should not be discriminated against. But Supreme Court overruled the judgment of the Delhi High Court, and Delhi High Court judgment was progressive in nature. It is said by various article writers, बहुत सब लोग ये कहते हैं विशेषज्ञ इस इशू पे कि that Supreme Court was acting as a populist court while it gave the judgment in the matter of gay rights or LGBT community rights. So आज हम बात करेंगे LGBT rights की briefly और basically बात करेंगे transgender rights की, right? Transgender rights में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद फाइनली government is going to take a call on this issue as to how to implement the Supreme Court judgment. अब Supreme Court ने उसके लिए हमें जानना ये जरूरी है कि what did Supreme Court say in the case of NALSA judgment. February 2014 में Supreme Court ने landmark judgment दिया for the rights of transgenders. Apex Court deemed that individual had the right to self-identification of their sexual orientation. So sexual orientation determine करने का individuals को right दिया जाए। ये 2014 की नालसा जजमेंट का मतलब इवोल्यूशन की बात अगर हम करें तो जजमेंट रिक्वायर्ड एफर्मेटिव एक्शन इन एजुकेशन, प्राइमरी एफर्मेटिव एक्शन मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है तो गवर्नमेंट वो पॉलिसीज में ट्रांसजेंडर्स को भी रिकॉग्नाइज करे, राइट। सॉरी फॉर द डिले गाइस, आई कैन रीड द कमेंट्स फाइनली एंड ऑल दोस थिंग्स, सो देयर वाज अ डिले ऑन माय पार्ट। नाउ गवर्नमेंट ने एफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट को अब लेना होगा टू अपलिफ्ट दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी आल्सो. And while giving this judgment, one of the judges on the bench, he observed that government should not confine itself to the traditional sections of society, traditionally backward sections of society, like SCs, STs and OBCs, right? उनके ऊपर उठते हुए government को basically transgenders और new arenas में भी venture करना चाहिए. Then फिर right of transgenders, transgender persons bill 2014 was introduced as a private member bill in Rajya Sabha by Mr. Tiruchi Siva, DMK के राज्यसभा MP हैं, right? It was unanimously passed by the upper house. राज्यसभा ने तो इस बिल को पास कर दिया, but was never debated in Lok Sabha. The clause in the bill included the creation of institutions like National and State Commission for Transgenders, as well as Transgender Rights Codes. तो ये सब इश्यूज पे कुछ काम नहीं हुआ। 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी ये जो लॉ है ये ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। अब जब लॉ बनाया गया है तो क्रिटिक्स का ये कहना है, ट्रांस राइट एडवोकेट्स का ये कहना है, ट्रांसजेंडर राइट्स एडवोकेट्स का ये कहना है, एनजीओस का ये कहना है कि द बिल इज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एनजीओस। आइए देखते हैं कैसे। द हाइलाइट्स ऑफ द बिल डिफाइंस अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हु इज पार्टली फीमेल और पार्टली मेल, राइट। तो इसके लिए पार्टली फीमेल और पार्टली मेल वाली बात है कि ये जो डेफिनेशन है वो बिल में दे दिया गया, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल और नीदर फीमेल नॉर मेल। तो ये डेफिनेशन से ही, एंड जो हमारे क्रिटिक्स हैं बिल के, डेफिनेशन से ही उनको एक आपत्ति है कि मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेफिनेशन, और आगे देखेंगे कि क्या उनको ऑब्जेक्शन है इस डेफिनेशन से। उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी का प्रोविजन है बिल में कि स्क्रीनिंग कमेटी का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। द ट्रांसजेंडर पर्सन हैज टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी, so as this screening committee will would be granted by the certificate जो फाइनल है सेक्स का कि ट्रांसजेंडर्स का सेक्स जो है पार्टली फीमेल और मेल जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी।
यानी कि अभी भी ट्रांसजेंडर जो है अपनी सेक्स की पहचान अपने आप से नहीं कर सकते, वो जो कहेंगे वो नहीं मानी जाएगी, स्क्रीनिंग कमेटी जो कहेगी वही मानी जाएगी। तो दोस्तों बात यहाँ पे है कि जो बाइनरी है मेल और फीमेल वाली, उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, उनको तो कुछ ऐसा स्क्रीनिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई और सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता। तो फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए अब ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल के साथ सरकार इसे लेके आ रही है इस नाम से। तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए क्यों, मेल और फीमेल के लिए तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, ये क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है। Then bill directs the central and state governments to provide the benefit under welfare schemes। तो जो भी वेलफेयर स्कीम रहेंगी उनके अंडर, वेलफेयर स्कीम्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम, और जो भी यूपीएससी का एग्जाम है उसमें भी रिजर्वेशन, और स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनमें भी रिजर्वेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी देना होगा। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है इस बिल का। Then denial of access to public place, physical and sexual abuse, compelling a transgender person to beg, etc। यानी कि जो भी उनको एक वे से पर्सिक्यूट किया जाता है या उनको जो प्रताड़ित किया जाता है, वो भी जो है यहाँ पे दंडनीय अपराध बना दिया गया, राइट। तो इसमें क्या है कि imprisonment up to 2 years and fine also has been envisaged in the bill, कि फाइन लगाया जाएगा या फिर 2 years की imprisonment या फिर साथ-साथ फाइन भी, राइट। अब जो है अगर इसका एनालिसिस करें, the right to self perceived gender identity is still not enforceable, यानी कि अभी भी जो जेंडर आइडेंटिटी डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, उस स्क्रीनिंग कमेटी के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो तय करेंगे कि ट्रांसजेंडर का सेक्स आखिरकार है क्या। तो सेल्फ परसीव यानी कि ट्रांसजेंडर इंसान को, व्यक्ति को जो लगता है, द वे ट्रांसजेंडर पर्सन envisages or perceives his identity, sexual identity will still not be recognized even if the bill comes into force. So this is a kind of, again, violation of Article 15 fundamental right. We are not talking about article the constitutional right or legal right. We are talking about the fundamental right. As per Article 15 of the Constitution, every citizen of India is should be protected against discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. But यहाँ पे बावजूद the state, despite the fact that bill is being brought about, in the bill itself this self-perceived gender identity is not enforceable. A district screening committee would issue a certificate of identity to recognize transgender persons. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था जजमेंट में, नालसा जजमेंट इसे कहा जाता है, जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स पे सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी and autonomy under Article 12 of the Constitution. However, objective criteria may be required to determine, कोई objective criteria Supreme Court ने भी नहीं दिया था। Herein lies the lacuna in the Supreme Court judgment itself. When the Supreme Court judgments they come, they are delivered on any subject, they are expected to throw some light there on the issue, so that there is no scope for multiple interpretation. But here, Supreme Court judgment in Nalsa case recognizing the rights of transgenders is found to be wanting in itself. इसीलिए उसी जो लेकुने को, उसी जो लॉ में, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो गैप रह गया है, उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी is not being enforced, is not being envisaged to be enforced by the bill itself. The definition of transgender persons in the bill is at variance with the definitions recognized by international bodies like United Nations and experts in India. The terms like trans men, trans women, persons with intersex variations and gender queers have not been defined. बिल में ये टर्म्स जो है डिफाइन नहीं की गई हैं, leaving the scope for police authorities or for the public at large to continue with their, or especially the public at large, to continue with their persecution of these people. Now it is unclear how certain laws that only recognize the genders of man and women would apply to transgender persons. अब इसके लिए बाकी सब लॉज में कैसे जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में या राइट टू एजुकेशन एक्ट में या और डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उनके तहत कैसे ट्रांसजेंडर्स को बिल में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इट इज स्टिल नॉट क्लियर. तो these are the lacunae that the critics or the trans gender community welfare NGOs they talk about these things. They believe that the definition of transgenders draws a clinical caricature and is not able to do away with the stigma it placed on transgenders. अब ये जो remarks हैं trans men, trans women और intersex persons with intersex variation,
they themselves are derogatory remarks. For example, अगर आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, तो उसमें किसी को शेड्यूल ट्राइब बुलाना अपने आप में एक जुर्म है। तो क्या ऐसा काम इस ट्रांसमैन, ये जो हम बात कर रहे हैं इस बिल की, ट्रांसजेंडर्स बिल की, क्या उसमें भी इसको एक कानूनी जुर्म नहीं बनाया जा सकता, जबकि बिल खुद ये बात कर रहा है ट्रांसमैन कौन है, ट्रांस वुमेन कौन है, और इन पर्संस विद इंटरसेक्स वेरिएशंस कौन है। तो these are the grave lacunae in the bill, right? Now, according to the critics, the provision of earmarking jobs for transgenders, which was the central idea of 2014 Transgenders bill, okay, has been lost in translation. So, with the diluted new draft, ditching reservations and espousing equal opportunity in all spheres of life as a panacea to create equity among the sexes. तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो द गवर्नमेंट और द स्टेट शुड थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सेक्शंस, द स्टेट गवर्नमेंट शुड थिंक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू व्हेन इट कंसीडर्स गिविंग द रिजर्वेशन, ओके, दे शुड राइज अबव द एससीज एसटीज एंड थिंक ऑफ गिविंग रिजर्वेशन टू ट्रांसजेंडर्स। बट ड्राफ्ट बिल में ये जो आइडिया है, इसको कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस को कहीं ना कहीं साइड बाईपास कर दिया गया है। और बिल in a way talks about equal opportunity in all spheres of life. तो बिल ये कह रहा है कि this is a kind of panacea. तो सोसाइटी के जो evils हैं इक्विटी क्रिएट करने के, ये एक पैनिशिया है कि ऑल स्फीयर्स में इक्वालिटी कर दो। तो जब रिजर्वेशन इनको देने की बात आई, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट टेकिंग द मेजॉरिटेरियन व्यू। यहाँ पे बिल जो है मेजॉरिटेरियन व्यू लेते हुए इन माइनॉरिटी सेक्शंस को रिजर्वेशन देने से अभी भी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश है यहाँ पे, राइट। ग्रीवेंस रिड्रेसल हैज बीन इंटरनलाइज्ड with establishments consisting of 100 or more persons mandated to designate a complaint officer to deal with any violation of the act. This is in lieu of setting up a central and state transgender right code. तो जो पहले का बिल था इसका, उसमें सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ट्रांसजेंडर राइट्स कोड्स की बात करी गई थी। लेकिन अब बिल ये कहता है कि कोई भी प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट अगर 100 से ज्यादा कोई एम्प्लॉइज हायर करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ एक कंप्लेंट्स ऑफिसर लगाना होगा। और इसमें कोई भी कोड की बात, स्पेशल डेडिकेटेड कोड्स की बात यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं करी गई है, राइट। देन these are the reasons why your transgender community is upset with the provisions of the bill. And then India's transgender community, which numbers approximately 4.8 million as per the data from the latest census of 2011, is upset with the contentious bill, since they believe the legislation meant to safeguard their interests only serves to undermine their right to life and livelihood, as envisaged under Article 21 of the Constitution. तो बिल बजाय इसके कि बिल इनको कोई राइट्स दे रहा है, बिल एक तरह से इनका जो रिजर्वेशन का राइट जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी सरकार को, वो कहीं ना कहीं बिल उसे बाईपास कर गया है। तो कोई टेंजिबल बेनिफिट अगर हम बात करें बिल में, टेंजिबल बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ये बेनिफिट है कि 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। 2 साल की सजा का इसमें प्रावधान है सिर्फ उनके लिए जो कि परसिक्यूट करेंगे ट्रांसजेंडर्स को, बाकी कोई इसमें बात नहीं करी गई। और सेम चीज है जो एलजीबीटी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 2017 में आया, उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहीं ना कहीं सरकार को ये कहा गया कि आप इनके लिए बिल लेके आइए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एलजीबीटी कम्युनिटी को, और इनके लिए भी रिजर्वेशन एनविसेज किया जाए। उसके साथ उससे पहले की जो 2014 की जजमेंट है, हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं, नालसा केस की जजमेंट कहा जाता है। तो व्हाट डिड द स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2016 का ये जो ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 है, इस पे क्या क्या कहा था। इन इट्स रिपोर्ट 2016 पे जो रिपोर्ट कमेटी ने दी थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी व्हिच वाज asked to review this bill, it drew attention to the inadequate definition of the third gender, which is founded on a heterosexual worldview. Okay, तो heterosexual worldview पे आधार केंद्रित इस जो definition रखी गई है, उस judgment की तरफ ध्यान आकर्षित किया स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने भी। And committee advocated extending civil rights enjoyed by the citizenry such as marriage, divorce and adoption to encompass the third gender. तो सिर्फ एक प्रोटेक्शन बिल ला देने से नहीं होगा, हर लेजिस्लेटिव एरिना में इनके लिए प्रोटेक्शन का और इनकी बेटर लाइफ इन ऑर्डर टू एनेबल देम टू लीड अ बेटर लाइफ प्रोविजन जिसमें
होने चाहिए, राइट। तो ये कहा था कि मतलब जैसे आईपीसी है या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट है, उन्हें भी साथ साथ अमेंड करना होगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू अमेंड दोज बिल्स इंडिविजुअली, द गवर्नमेंट कुड हैव कंसीडर्ड अमेंडिंग दोज बिल्स विद द सिंगल लेजिस्लेशन, दिस लेजिस्लेशन इटसेल्फ। ओके, तो उसमें एक क्लॉज डाल दिया जा सकता है इस लॉ में, इस बिल में, कि anything which contravenes the provision of this bill, Transgender Persons Protection of Rights Bill 2016, will be held to be null and void after the date of from the date when this new bill comes into force. तो ये करके किया जा सकता था। All that is required is the legislative will on the part of the authorities. Instigating transgenders into beggary, यानी कि उनको भीख मांगने के लिए उकसाना और leaving their domicile, उनको ये बोलना कि अपना घर छोड़ के चले जाओ, is a punishable offence for which maximum term is 2 years. अब यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि यहाँ पे 2 साल जो है बहुत कम है। और फाइनल रिकमेंडेशंस इंक्लूड द रेस्क्यू, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। रेस्क्यू का मतलब है अगर वो किसी चंगुल में फंस गए हैं, आप देखते हैं कि मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम देखते हैं कि दे आर फाउंड बेगिंग और दे आर इनटू द सेक्स ट्रेड आल्सो, और सेक्स ये मतलब एरियाज में, ठीक है, तो उनको वहां से रिहेबिलिटेट कराया जाए। इसके लिए सरकार को एक पॉजिटिव स्कीम इंप्लीमेंटेशन करने की भी नीड है, ये कहना है क्रिटिक्स का और एनजीओस का जो कि इस एरिना में काम कर रही हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डायरेक्टेड टू अडॉप्ट एन इंक्लूसिव अप्रोच दैट इज जेंडर न्यूट्रल। तो जेंडर न्यूट्रल अप्रोच, जैसे कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में या फिर और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें जेंडर न्यूट्रल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इनके कॉन्टेक्स्ट में भी जेंडर को ज्यादा बेसिकली एक वे से उसे हाईलाइट करने की नीड नहीं है, उसे एक वे से न्यूट्रलिटी के एंगल से देखने की और इस वे में साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करने की नीड है। और द गवर्नमेंट हैज आल्सो फॉर्मुलेटेड द वेलफेयर स्कीम्स स्पेशली टारगेटेड एट ट्रांसजेंडर्स सच एज बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। ओके, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर आल्सो इन द पाइपलाइन, ये गवर्नमेंट का कहना है। देन हाउएवर द एम्बिग्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ द थर्ड सेक्स lends itself to misinterpretation, यानी कि ये मिसइंटरप्रेट करके भी इन्हें केस बाय केस बेसिस पे या फिर बाद में जब ये लॉ इंप्लीमेंट भी किया जाएगा तब भी काफी चीजें जो है लाइट में, मतलब जो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स, ओके, हो सकता है दैट आल्सो माइट नॉट कम टू लाइट, क्योंकि अगर डेफिनेशन में ही एक वैसे हम चिंक जो है या फिर एक गैप छोड़ दे रहे हैं। Section 377 of Indian Penal Code, which has been used by the police to criminalize non-heterosexual sex, यानी कि एक वैसे होमोसेक्सुअल्स को जो प्रोसिक्यूट करने के लिए सेक्शन 377 जो है बिल के आ जाने के बाद भी ये जो है लॉ बुक में, स्टैट्यूट में, आईपीसी में रहेगा। नॉन कंफॉर्मिस्ट यानी कि जो सोसाइटल नॉर्म्स को सेक्सुअल बिहेवियर जो कंफर्म नहीं करता, नॉन कंफॉर्मिस्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज स्कॉफ्ड एट, इज फ्राउंड अपॉन, and transgenders often find themselves at the receiving end of the disproportionate attention from the law enforcement agencies। यानी कि जहां पे ये ट्रांसजेंडर्स कुछ कॉलोनीज हैं, पॉकेट्स हैं जहां पे 10-12 घर इनके बने होते हैं, पुलिस वहां पे इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए टाइम टू टाइम एक जो है रेड कंडक्ट करती रहती है, which is why the non-conformist sexual orientation जो हमारी सोसाइटी का है उसे हमें एक वैसे अंडर प्ले करना चाहिए। इस बिल में कहीं ना कहीं थर्ड सेक्स की डेफिनेशन के चलते वो ओवरप्ले हो रहा है। However, Supreme Court ruling on as late as August 24, 2017 that right to privacy was a fundamental right and was thereby applicable to the protection of sexual orientation of citizens also gave a reprieve to LGBT community। Okay, तो सुप्रीम कोर्ट की राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में LGBT कम्युनिटी का भी जिक्र था। इफ यू वर फॉलोइंग द डेली न्यूज एनालिसिस, हमने ये चीज साथ में स्टडी करी थी कि the Transgender Persons Protection of Rights Bill 2016 is slated to be reintroduced in the winter session, was slated to be reintroduced on December 15, 2017, right? अब इस पे जो है कश्मकश कुछ चल रही है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव एरिना में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी LGBT कम्युनिटी को ये कहा था कि they have a right to sex, they have a right to sex as per their sexual orientation। इसमें भी स्टेट को खलल नहीं डालना चाहिए, राइट? तो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा से रीइंफोर्स किया है, इस जजमेंट को, 2014 की जजमेंट को। अब अगर फ्रेंड्स हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसजेंडर लेजिस्लेशन, सबसे पहले फरवरी 2014 में, फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट पास द लैंडमार्क जजमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। एपेक्स कोर्ट डीम्ड इट दैट इंडिविजुअल्स हैड द राइट टू self identification of their sexual orientation constituting the fundamental right granted by the constitution, article 15,
आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को भी। The judgment required affirmative action in education, primary health care, social welfare schemes. जजमेंट ने ये बातें कही थी कि इनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। और राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस बिल जो पुराना था 2014 का, उसमें कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजंस थे जैसे कि ट्रांसजेंडर कोड्स, स्पेशल कोड्स होने चाहिए स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, उसे डाइल्यूट किया गया 2016 के इस बिल में, जो कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में अभी पेंडिंग है। National Legal Services Authority Judgment 2014. As per the judgment of Supreme Court 2014, Supreme Court recognized transgenders as the third gender. Supreme Court bench directed the center and states to take steps to treat them as socially and educationally backward classes. अब आर्टिकल 340 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे, स्टेट शुड टेक स्टेप्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ for the betterment of the conditions of life of socially as well as educationally backward sections of society. तो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 15 और 16 में भी जो एक्सेप्शंस कार्व आउट करी गई हैं बाय वे ऑफ सक्सेसिव अमेंडमेंट्स, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, 16 क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शुड कम इन द वे ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। उस दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को भी इसी दायरे में लाके प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और रिजर्वेशन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, बी इट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। द बेंच सेड दैट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एज थर्ड राइट्स इज नॉट अ सोशल और मेडिकल इशू, बट इट इज equally or more than that, it is a human rights issue. And the Supreme Court was quite vocal in saying that the spirit of constitution, not only letter, article 15, 16 सिर्फ letter ही नहीं, but की spirit भी is to provide equal opportunity to every citizen, be it transgender, be it lesbian, be it gay, or anybody for that matter, and attain their potential irrespective of caste, religion, or gender. By virtue of this verdict, all identity documents including birth certificate, passport, ration card, driving license would recognize the third gender. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, इस ऑर्डर के बाद में पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में भी थर्ड कॉलम आने लग गया, यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म में भी थर्ड कॉलम, नॉट ओनली मेल और फीमेल बट आल्सो ट्रांसजेंडर्स, राइट? सो by virtue of this all identity documents and their forms were to be updated in such a manner that transgenders can choose their religion or choose their sex accordingly. It is only with this recognition many rights such as right to vote, right to own property in their own name, and right to marry for transgenders became meaningful. So guys, ये काफी जो है point of contentions भी हैं इसमें, जैसे कि अगर हम quickly इसके बारे में बात करें, transgender rights should not depend on screening. If the bill does away with the screening committees, it must come up with an equally progressive alternative that ensures that assertion of the transgender person's identity. तो contentious points जिन्होंने हाईलाइट करे हैं एनजीओस ने, उनका ये कहना है कि स्क्रीनिंग कमिटीज, मतलब एक वैसे आप मेडिकली ये तय करोगे कि ये पर्सन जो है ट्रांसजेंडर है, इसकी जगह कोई और होना चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। तो इनकी जगह कोई और मैकेनिज्म लेके आना चाहिए, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं असर्शन होना चाहिए, ट्रांसजेंडर पर्सन की आइडेंटिटी के लिए असर्शन का उसमें मैकेनिज्म होना चाहिए। और नालसा जजमेंट गेव ब्रॉड डायरेक्टिव, ये आदेश दिए गए थे केंद्र और राज्य सरकारों को कि अफर्मेटिव एक्शन पब्लिक हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में और ये सब में लिया जाना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन जो है, इनका जो पक्षपात है इनके खिलाफ, नालसा जजमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं अभी तक कंटिन्यू होते आ रहा है। तो जैसे लेजिस्लेचर ने, हमने देखा था रिसेंटली ट्रिपल तलाक जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बाद काफी प्रोएक्टिविटी जो है, प्रोएक्टिविटी दिखाते हुए प्रोएक्टिवली ट्रिपल तलाक बिल जो है पार्लियामेंट में लेके आया गया, और उसे पास करने पे काफी ज्यादा डिबेट भी हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट की 2014 की इस जजमेंट के बाद में इतना ज्यादा प्रोएक्टिविटी जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए भी दिखाई जा सकती थी, लेकिन बिकॉज एज आई सेड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटेरियन व्यू हमारी इंस्टीट्यूशंस लेती आई हैं, चाहे वो जुडिशरी हो। जुडिशरी ने भी 2014 में जो सुप्रीम हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी फॉर गे राइट्स, उसे कहीं ना कहीं उस जजमेंट को जो है नलिफाई कर दिया था। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेसी में कभी कभी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दे बिकम पॉपुलिस्ट इन देयर ओरिएंटेशन और टेंडेंसी, राइट?
तो ये है डिस्क्रिमिनेशन जो है इन जून 2014 रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का ये कहना था, ट्रांसजेंडर पर्सन डाइड फॉलोइंग एन एक्सीडेंट एज डॉक्टर्स कुड नॉट डिसाइड which ward male or female to use for the treatment of the transgender person. In February 2015, Telangana Hits Transgender Samiti reported 40 attacks on transgender people within 6 months. 2015 से within 6 months. Now, several instances of mistreatment of transgender people by the police were reported by Human Rights Watch release 2015. तो अभी भी जब तक सेक्शन 377 लॉ बुक्स पे रहेगा, जब तक आईपीसी से इसे डिलीट नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके कि टॉप कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जजमेंट आ चुका है कि उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं परसिक्यूशन चलते रहेगा। तो इसे रोकना है तो एक वैसे ये जजमेंट जो आर्टिकल है, जजमेंट जो है उसे कहीं ना कहीं बिल में हमें ट्रांसलेट करके इसे फटाफट से पास करना जरूरी है। तो एज अ ब्रीफिंग पेपर ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नालसा जजमेंट बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, आईसीजे का जो पेपर है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स का, सेज द इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड सम ऑफ द कोर डायरेक्शंस सेट आउट इन द सुप्रीम कोर्ट नालसा जजमेंट ऑफ 2014। और गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन है, although the Supreme Court delivered the judgment based on constitutional equality as talked about in the articles 14, 15, 16, right? So however, many people believe that government largely has failed to implement it and accuse that spirit of Nalsa judgment is being blatantly disregarded. Trans people continue to face violation of their right to life, facing unreported and unregistered hate crimes, poor access to health and medical care, और उसमें अब ट्रांसजेंडर वार्ड की जैसे बात करी गई तेलंगाना ये 2014 में कि मेल और फीमेल वार्ड होता है तो हॉस्पिटल्स में ट्रांसजेंडर वार्ड भी होना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे काफी ज्यादा आएंगे, इनको बेसिकली रिजॉल्व करने की नीड है। तो गाइस ये जो आज का था ये थोड़ा थियोरेटिकल था बिकॉज आई कुड नॉट राइट सो मच ऑन द व्हाइट बोर्ड। आज का इशू भी थोड़ा लंबा था, तो कल फिर मिलेंगे अराउंड 8:15। We'll be taking up any other hot topic from the newspaper itself. आज का जो hot topic था basically I dealt with in the editorial analysis itself, जो issue था non-aligned movement का। श्रीलंका की अगर बात करें, I'm not having the map, तो I'll be creating a separate video जो कि श्रीलंका पे अभी जो issue चल रहा है, व्हाइट बोर्ड ऑपरेशन औपचारिक तौर से ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, आप ये कह सकते हो, ठीक है, विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन ये कह सकते हो। तो उसमें हम क्या करेंगे कि श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल और म्यांमार, ये सब जो चीजें हमारे इंडिया के नेबरहुड में देखने को मिल रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्पेस इन इट्स नेबरहुड, इज इट श्रिंकिंग? इफ वी सी दैट वी आर लूजिंग द लीवे, वी आर नॉट एज एक्टिव एज चाइना. China deployed its naval ships in Maldives, and China is already actively engaged in Myanmar and Bangladesh, between Myanmar and Bangladesh, insofar as resolution of the Rohingya crisis is concerned. तो रोहिंग्या क्राइसिस में भी इंडिया ने जो है एम्बिवेलेंट व्यू रखा। एम्बिवेलेंट क्या कि मतलब करना क्या है उसमें, इंडिया को इतना वोकल नहीं था, नीदर इंडिया वाज ऑन द साइड ऑफ बांग्लादेश नॉर वाज इट कॉलिंग अ स्पेड। म्यांमार को भी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया जो है उतना वोकल नहीं है इन इश्यूज को लेके? नॉर्थ कोरिया, अगर थोड़ी हम और दूर जाएं, नॉर्थ कोरिया में भी चाइना वाज ऑन टैसिटली ऑन नॉर्थ कोरिया साइड, बट इंडिया वाज इवन इंस्टिगेटेड बाय यूएसए टू टेक अ स्टैंड. इंडिया डिड नॉट टेक अ स्टैंड, राइट? तो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया था. श्रीलंका में अभी जो इमरजेंसी का एरा है, दो दैट इज एन इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर, और क्या इंडिया को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए? Basically, India is a SAARC member country, and all these countries we have talked about, except North Korea, Myanmar, Bangladesh, और ये सब countries जो हैं SAARC member countries हैं, right? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इवन अफगानिस्तान, नेपाल, SAARC member countries हैं. SAARC का जो चार्टर है वो बेसिकली SAARC चार्टर ये कहता है कि countries should refrain from interfering in the internal political matters of other countries. तो इंडिया इसीलिए जो है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, राइट? तो इट इज अ गुड थिंग. तो हम इसको सार्क के प्रिज्म से भी देख सकते हैं इस इशू को, और साथ साथ हम इस इशू को जो है एक इंडिया का श्रिंकिंग फॉरेन पॉलिसी स्पेस के भी वे से देख सकते हैं. नो डाउट सार्क जो है टॉक्स अबाउट दिस थिंग. और अगर इसके बारे में हमें पॉजिटिव लिखना हो, व्हेन जब सम थर्ड कंट्री वाज इन अ वे इंट्रूडिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ अनदर कंट्री, डोकलाम क्राइसिस, भूटान में चाइना वाज in a way trying to encroach upon the Bhutanese area.
तब इंडिया ने वोकली रेजिस्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी स्पेस या इंडिया का जो रिलेशन है इस कंट्रीज के साथ में, वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है एज होते जा रहा है। जहां जहां पे वॉइस की नीड होती है, इंडिया अपनी आवाज टाइम टू टाइम उठाते रहता है। बेस्ट एग्जांपल है आपका डोकलाम क्राइसिस। भूटान की जो लैंड है टेरिटोरियल स्पेस में, चाइना वाज ट्राइंग टू इंट्रूड इनटू भूटानीज टेरिटरी। अफगानिस्तान में हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं जहां तक पीस एंड स्टेबिलिटी का सवाल है, जहां तक ट्रेनिंग देयर आर्मी फ्रॉम दी फ्रॉम दी बैकग्राउंड का एक वे से सवाल है। हम डायरेक्टली अपनी आर्मी वहां पे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव लर्नड आवर लेसन्स बाय वे ऑफ एलटीटी वॉर। हमने काफी सारे अपने जो है आर्म्ड पर्सनल हमने खोए, फिर देन वी लॉस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो। तो वो जो चीज है वो डायरेक्टली किसी कंट्री में इन्वॉल्व हिस्टोरिकल रीजंस के चलते नहीं होंगे। हमने जो प्लेन हाईजैक हुआ काबुल का, उसका भी कुछ ना कुछ लेना देना था कि वी वर क्वाइट वोकल अगेंस्ट तालिबानी रूल इन अफगानिस्तान। सो दैट इज व्हाई जहां तक सिविल एड और हेल्प का सवाल है, नेपाल में जब 2015 में अर्थक्वेक आया तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री whose airplane with carrying the relief material landed in Nepal। तो इंडिया हमेशा इन कंट्रीज के साथ में, नेबरहुड कंट्रीज के साथ में खड़े रहा है जहां तक डिजास्टर रिलीफ का सवाल है, जहां तक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बट एट द सेम टाइम इंडिया इज नॉट so much involved in these countries that it hurts the national security of India also, right? तो हम militarily अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं है, but till date we have invested more than $2 billion in Afghanistan. We have constructed their parliament house also. तो ये सब जो चीजें हैं, इसी दायरे में आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हो 2018 में, और अपने व्यूज जो इन दी लाइट ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव हैड, अपने व्यूज भी इस पे गैदर कर सकते हो, राइट? तो कल फिर मिलेंगे गाइस किसी और इशू के साथ में। टाइम रहेगा 8:15। वेन्यू वुड बी ईदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल IAS तैयारी विद जतिन वर्मा, राइट? और गाइस ऐसे इश्यूज के लिए और सारे इश्यूज के लिए यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग द करंट अफेयर्स कोर्स बाय मी। अराउंड 70-80 सीट्स, 50-60 सीट्स है आई थिंक। तो वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स एज पर द डिमांड। उस सारे कोर्स में ऐसी ही एनालिटिकल डिबेट्स रहेंगी। कोर्स महंगा है, बट आई विल ट्राई टू जस्टिफाई इट विद द इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और इवन मोर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। सो फीस का केस जो है टोटली इट इज नॉट इन माय हैंड्स, ठीक है? फी लेवल, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय अन अकेडमी। I get my view share, that's another thing, but जहां तक क्वालिटी है that is in my hand। ड्यूरेशन ऑफ वीडियो लेसन्स रहेगा उस कोर्स का 1 से 1.5 से 2 घंटे भी रहेगा, बट ऐसी एनरिचिंग डिबेट्स हम वहां पे देख सकते हैं। और उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, इस वीडियो के नीचे भी एक बार दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। और ये पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ राइट अवे आई विल बी अपलोडिंग ऑन टेलीग्राम चैनल, और गूगल ड्राइव पे भी आप पा सकते हो उसे। टेलीग्राम चैनल जतिन वर्मा 05 पे आप इसका जो पीडीएफ है इसका पा सकते हो। ये 18 पेजेस लॉन्ग है, तो काफी इंसाइटफुल रहेगा। और खासकर इसे आपको देखना है फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 और 15 के प्रिज्म से, 14, 15 एंड 21 के, राइट? तो ये रहेगा। बाकी गाइज आज डाउट्स का कोई सेशन नहीं था, तो आई एम नॉट एंटरटेनिंग योर डाउट्स। और दिस पीपीटी इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कोर्स, ठीक है? So which I thought to share it with you guys. This is a kind of open source now. So that was all guys. I hope you enjoyed this analysis. I can understand this must have been a theoretical video, but still after reading the after going through the PPT or PDF, you will be able to make better sense out of it. Thank you. Bye bye.